ایک قطرہ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ ویسے ہی اپنے خودی کو فنا کر کے اپنے محبوب کو پانے والوں میں اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی سبزواری کا نام یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا شجرہ نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: امام علی، ان کا بیٹا امام حسین، ان کا بیٹا امام زین العابدین، ان کا بیٹا امام محمد باقر، ان کا بیٹا امام جعفر صادق، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل، ان کا بیٹا محمد، ان کا بیٹا اسماعیل ثانی، ان کا بیٹا محمد منصور، ان کا بیٹا سید غالب، ان کا بیٹا حضرت عبد المجید، اور ان کے دو بیٹے ہوئے حضرت منتخب باللہ اور حضرت منتظر باللہ۔ حضرت منتخب باللہ سے حضرت قلندر شہباز کا نسب ملتا ہے، اور حضرت منتظر باللہ سے شاہ شمس تبریز کا کچھ یوں۔ ان کے بیٹے ہوئے حضرت احمد ہادی، ان کے بیٹے ہوئے سید ہاشم علی، ان کے بیٹے ہوئے محمد معصوم، ان کے بیٹے ہوئے محمود، ان کے بیٹے ہوئے سید محب، ان کے بیٹے ہوئے علی خالد، ان کے بیٹے ہوئے عبد المومن، ان کے بیٹے ہوئے علی سلام الدین، ان کے بیٹے ہوئے محمد صلاح الدین، ان کے بیٹے ہوئے حضرت شمس الدین تبریزی سبزواری، جس کو زمانہ شمس تبریز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 25 سال پہلے آپ کے دادا علی سلام الدین نے آپ کے بابا محمد صلاح الدین سے کہا کہ اے میرے بیٹے، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا فیض سورج کی طرح پوری دنیا میں چمکے گا، اس کا نام شمس رکھنا، اور اسے یہ میری امانتیں دینا اور کہنا جو علم اسے ملنا ہے وہ علم اس کے خون میں چھپا ہے۔ بس کچھ برس بعد اللہ پاک نے 15 شعبان 560 ہجری بمطابق 1 دسمبر اپنی رحمت کے خزانے میں سے اس ولی کا ظہور کر دیا جس کو آج بھی زمانہ شمس تبریز کہتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھے، سارا دن اندھیرے میں تنہا بیٹھے رہتے تھے اور اپنے والد سے مختلف علوم سیکھتے رہے، جن میں علم سلوک، علم نجوم، علم عقوب، علم نقالہ، علم نتیت، علم ابجد، علم لباب، علم جفر، علم نور، جنات نقد، مسام، اسرار زبان، نخد اور نیالہ کے ہزاروں راز تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 16 سال تک ہی پہنچی تھی کہ آپ ہر انسان کے ہر سوال کا جواب قرآن سے دینے لگے۔ بعض مرتبہ آپ کے والد آپ کی اس معرفت کی منزل کو دیکھ کے اپنے بابا کی وہ بات یاد کیا کرتے تھے کہ تیرے بیٹے شمس کا نور پوری دنیا میں چمکے گا۔ لیکن جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا رہا، آپ لوگوں سے ملنا کم کرتے رہے۔ آپ کے بابا مختلف گاؤں، دیہات، شہر میں آپ کو لے کے جایا کرتے تھے اور آپ دین حق کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ بس آپ کی عمر ابھی تھوڑی ہی بڑی ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کی الگ طبیعت کو دیکھ کے حضرت جلال الدین کی بیٹی سے آپ کی شادی کرانے کا فیصلہ کر دیا۔ اپنے والد کی خوشی کے لیے آپ نے شادی کر دی اور اس سے آپ کو اللہ نے 2 فرزند عطا کیے، ایک سید نصیر الدین اور دوسرا سید اللہ الدین، جن سے آپ کی اولاد آج بھی پوری دنیا میں شمسی، تبریزی یا سبزواری سادات کے نام سے پائی جاتی ہے۔ بس زندگی گزر ہی رہی تھی کہ ایک رات آپ کے والد نے خواب دیکھا کہ وہ سورج کی روشنی کو زمین میں تدفین کر رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوا، تعبیر پوچھنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا تو آپ کے فرزند حضرت شمس تبریز قریب آئے اور کہا، بابا، اللہ نے سورج کی روشنی کو سب کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ کا اس سورج سے پیار اس فیض کو دنیا سے روک دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا تو آپ کے والد نے اس خواب کی تعبیر پالی اور کہا، اے میرے بیٹے، تیرا جہاں جی کرے وہاں چلا جا، کیونکہ تیرے ہاتھوں سے، تیرے کردار سے لاکھوں لوگ فیض پائیں گے اور سینکڑوں لوگ مسلمان ہوں گے۔ جاؤ بیٹا جاؤ۔ بس اپنے بابا سے اجازت لے کے آپ تبریز کی طرف روانہ ہو گئے اور 12 سال تبریز میں رہے۔
जैसे कि वहाँ के लोग इंसानों पे जुल्म करते थे, तो आप मुसलसल उनकी इस्लाह करते रहे। तभी आपको शम्स सब्जवारी और शम्स तबरेजी भी कहा जाता है। बस उसके बाद शाह शम्स तबरेज मक्के की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह के घर की ज़ियारत के बाद रोज़ा रसूल पे आए। वहाँ से नजफ, नजफ से करबला, करबला से बगदाद, बगदाद से सामरा, सामरा से फिर मशहद, मशहद से कीनिया, अफ्रीका, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे और अपने किरदार और करामात और इल्म से लोगों को फैज़ देते रहे। तभी आपको मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुख्तलिफ नाम से बुलाने लगे। रोम में शम्स तबरेज, इराक में शम्स बगदादी, ईरान में शम्स तबरेजी सब्जवारी, कश्मीर में शम्स परिंदा, अफ्रीका में शम्स कलंदर, किनान में शम्स किनानी, मिस्र में शम्स मिस्री और शाम में शम्सुद्दीन के नाम से याद किया जाने लगा। आपकी एक आदत हुआ करती थी कि आप मुख्तलिफ शहर जाके तबलीग और लोगों की इस्लाह किया करते थे, लेकिन जब वहाँ के लोग दर्से अखलाक पा लेते थे तो आप वहाँ से कूच कर लिया करते थे। वो लोग ढूंढते रहते थे, लेकिन आप फिर कहीं ऐसी जगह चले जाया करते थे जहाँ लोगों को इस्लाह की जरूरत होती थी। तभी आपकी एजाजी कब्रें काफी मकामात पर हैं। कोई ईरान में भी आपकी एजाजी कब्र बनी हुई है, रोम में भी आपकी एजाजी कब्र बनी हुई है, तुर्की में भी आपकी एजाजी कब्र बनी हुई है, कराक्रम में भी आपकी कब्र बनी हुई है, क्योंकि आप लोगों की इस्लाह के बाद अचानक से वहाँ से चले जाते थे और लोग आपको ढूंढते रहते थे और आपकी एजाजी कब्र बना लेते थे। ऐसे घूमते घूमते जब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 60 साल की हुई तो आप रोम पहुंचे। फटी हुई चप्पल, पुराने कपड़े, फकीरी लिबास, बड़े बाल, लोग आपको अजीब निगाह से देखते थे और लबों पे हरदम जिक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान मुसलसल बयां करते रहते थे। यही सबब था कि लोग और उस वक्त के उलमाए दीन आपकी तौहीन करते थे। एक मर्तबा रोम में आप चल रहे थे, देखा कि एक आलिम जिसको जमाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से पहचानता है, अपने शागिर्दों को दर्स दे रहा है और उसके साथ उसकी वो अनमोल किताबें जो हाथ से लिखी हुई थी, जिसमें कुछ उसके वालिद के हाथ की लिखी हुई किताबें भी थी। शाह शम्स तबरेज करीब आके कहने लगे, आए अपने आप को आलिम कहने वाले, ये क्या है और तुम क्या कर रहे हो? मौलाना रूमी ने ऊपर देखा, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पल, बड़े बाल, चेहरे पे मट्टी। जब इस हाल को देखा तो कहा, बाबा कहीं और जाओ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ये तुम्हारे समझ से बालातर बातें हैं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। बस ये कहना था तो शाह शम्स तबरेज ने देख के उन पूरी किताबों को, साथ में नदी थी उसमें फेंक दिया। फेंकने के बाद मौलाना रूमी परेशान हो गए, अपने हाथ सर पे रख के कहने लगे, क्या है बाबा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गजब कर दिया, इतनी अनमोल किताबें मेरे दादा मेरे बाबा ने इतनी मुश्किलात से लिखी, वो सारी तुमने नदी में फेंक दी, ये तुमने क्या किया? मौलाना रूमी के शागिर्द शाह शम्स तबरेज की तौहीन करने लगे। आप सबको देखते रहे और इशारा किया कि रुको। नदी में हाथ डाला और एक एक किताब को बाहर निकाला और मौलाना रूमी के हाथ में वो किताबें एक एक करके जमा कर दी। तो मौलाना रूमी ने जैसे देखा वो किताब खुश्क और उस किताबों से मट्टी निकल रही है, वो देख के हैरान हो गए और शाह शम्स तबरेज से पूछने लगे, ऐ बाबा ये क्या है? शाह शम्स तबरेज ने कहा, ये वो है जो तुम नहीं जानते। बस शाह शम्स तबरेज ये कह के चले गए और मौलाना रूमी अपने शागिर्दों को छोड़ के शाह शम्स तबरेज के पीछे पीछे आने लगे और कदमों में गिर गए और कहने लगे, मुझे माफ करना, मुझे अपना शागिर्द बनाओ, जो इल्म तुम्हारे पास है मुझे भी सिखा। तो शाह शम्स तबरेज ने कहा, इल्म ढूंढने से नहीं बल्कि खुद को खोने से मिलता है, क्योंकि एक कतरा कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो समंदर से मिल जाता है तो समंदर का हिस्सा कहलाता है। बस उस दिन से मौलाना रूमी सारा दिन आपके कदमों में बैठ के आपसे फैज हासिल किया करते थे और आपके मुरीद बन गए और रक्स करने लगे। लोगों को पढ़ाने के बजाय अपने आप में खो गए, खुदा के इश्क में जमीन को खम कर दिया। लेकिन जो मौलाना रूमी के शागिर्द थे
वो दिन ब दिन हजरत शाह शम्स तबरेज के दुश्मन बन बैठे कि इस बाबा ने पता नहीं क्या हमारे उस्ताद पे जादू कर दिया कि सारा सारा दिन ये घूमते रहते हैं, रक्स करते रहते हैं, हर चीज तब्दील कर दी, हर चीज छोड़ दी। मौलाना रूमी शाह शम्स तबरेज की शान में कहते थे कि शम्स ऐसे है कि दुनिया का कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, लेकिन जब शाह शम्स तबरेज की सोहबत में बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता जो इसे आता है। पूरी दुनिया को शम्स तबरेज के कसीदे सुनाया करते थे और कहते थे कि मुझ जलालुद्दीन रूमी को यकीन और मारिफत शाह शम्स तबरेज से मिली। लेकिन आपके खानदान वाले दिन ब दिन शाह शम्स तबरेज की तौहीन करने लगे, बुग़्ज़ रखने लगे, हसद करने लगे। तो आप रोम कोनिया छोड़कर दमिश्क सीरिया चले गए और हमेशा की तरह वहाँ पे भी गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगे और लोगों की इस्लाह करने लगे। लेकिन यहाँ पे मौलाना रूमी रो रो के निढाल हो गए, अपने शागिर्दों और घर वालों से लड़ते रहे कि ये तुमने क्या कर दिया, अल्लाह के उस वली को मुझसे दूर कर दिया जिसकी वजह से मुझे मेरा वजूद मिला था। मौलाना रूमी की हालत ऐसे हो गई जैसे एक बच्चे से उसकी माँ अलग हो जाए। रोते रहते थे, पूरा साल गुजर गया। किसी ने मौलाना को ये खबर दी कि दमिश्क में शम्स तबरेज को देखा गया है। तो आप ढूंढते ढूंढते दमिश्क आ पहुंचे और बड़ी मिन्नतें की कि आप हमारे साथ रहें, आप हमसे अलग ना हो, क्योंकि मुझे आपसे काफी फैज़ और लेना है। आप मेरे लिए मारिफत के राही हैं, मेरे हादी हैं, मेरे मुर्शिद हैं, मेरे उस्ताद हैं। बस बहुत मिन्नतों के बाद शाह शम्स तबरेज फिर से रोम आ गए और साथ रहने लगे। तो फिर से मौलाना रूमी ना मदरसा, ना जुम्मे का खुतबा, ना शागिर्दों को इल्म, ना किसी से बात, बस फकीरों की तरह अपने खुदी में खोए हुए शाह शम्स तबरेज के साथ मारिफत की राह पे अकेले चल पड़े। कुछ वक्त तो लोगों ने सब्र किया, लेकिन फिर से मुनाफिकीन उठे, हासदीन उठे और कहने लगे कि जब तक ये ढोंगी बाबा होगा तब तक हमारा उस्ताद हमें इल्म नहीं देगा। आओ इस बाबा को कत्ल कर लेते हैं, मार देते हैं। शाह शम्स तबरेज ने अपने शागिर्द मौलाना रूमी से कहा कि तुम्हारे लोग मुझे मारना चाहते हैं। मौलाना रूमी ने कहा किस में है हिम्मत कि मेरे उस्ताद को हाथ लगाए। शाह शम्स तबरेज ने कहा बस जितना तुम्हें सीखना था मुझसे तुम सीख चुके, अब तुम फैज़ अपने अल्फाज में ढाल के ज़माने तक पहुंचाओ। बस ये कहकर जब सोए और सो के उठना था तो मौलाना रूमी ने बहुत ढूंढा, शाह शम्स तबरेज को न पाया। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी घर के बाहर देखते हैं, कभी पूरा शहर ढूंढने लगते हैं। लोगों को कहते हैं शम्स तबरेज कहाँ गया, शम्स तबरेज कहाँ गया। लोग कहते हैं हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। वो ढूंढने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन शम्स तबरेज फिर कभी नहीं मिला। वो वापस दमिश्क गए, वहाँ ढूंढा, नहीं मिला। बस एक रात शम्स तबरेज ख्वाब में आके कहते हैं मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हें जो इल्म मिला उसे अल्फाज के लिबास में ढाल के लोगों तक पहुंचाओ। हमारा सफर बस यहीं तक था। इस ख्वाब के बाद मौलाना रूमी अपने फैज़ मारिफत से लोगों को मुतवज्जा करते रहे और आपके इश्क में आपकी एक एजाजी कब्र बना ली। जब भी याद आती तो आके आपकी कब्र को सलाम करते थे। और शाह शम्स तबरेज वहां से इमाम अली के रोजे पे आके एक फकीर की तरह बैठ के जिंदगी बसर करने लगे। कभी किसी गांव, कभी किसी गांव, कभी किसी शहर जाते थे, लोगों की इस्लाह करके फिर से रोजा इमाम अली पे आके बैठ जाते थे। बस एक मर्तबा आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत के लिए बगदाद गए तो बगदाद का बादशाह रास्ते से जा रहा था। सब अपने सर को झुका के खड़े थे, लेकिन शाह शम्स तबरेज बारोब उस बादशाह के चेहरे को देख रहे थे। बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा ये फकीर कौन है? लोगों ने कहा पता नहीं, ऐसे ही कोई फकीर है आया है। उसने शाह शम्स तबरेज को कैद करा के अपने महल बुलाया और तौहीन की, बहुत कुछ कहा। शाह शम्स तबरेज सिर्फ देखते रहे। बहुत तौहीन के बाद अपने महल से निकाल दिया। बस शाह शम्स तबरेज का बगदाद से नजफ की तरफ जाना था कि इतनी देर में उस बादशाह का बेटा मर गया। बेटे का मरना था तो लोगों में ये चर्चा शुरू हो गया कि शायद उस फकीर की बद्दुआ लगी है जिसको बादशाह इतना बुरा भला कह रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा। बादशाह को इस बात का एहसास हुआ। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ ढूंढो, उस फकीर को ढूंढो, मुझसे बड़ी गलती हो गई,
मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा न दे, जाओ उसे ढूंढो। किसी ने कहा कि हम उस फकीर को नजफ में देखते हैं, वो रोज़ाए अली के साए में बैठा होता है। आते हैं और शाह शम्स तबरेज के कदमों पे गिर के कहते हैं, ऐ अल्लाह के वली, चलो बादशाह के पास। तो आपने कहा, कौन बादशाह? मेरा बादशाह सिर्फ अली है। लोगों ने कहा, आप चले, वो आपसे माफी मांगना चाहता है, उसका बेटा मर गया और उसे ये लगता है कि उसे आपकी बद्दुआ लगी है, बस ये कहना था। तो आपने कहा, जाओ अपने बादशाह और उसके मरे हुए बेटे को मेरे बादशाह अली की दरबार में लेके आओ। बस वो बादशाह रोते रोते अपने बेटे की लाश को लेके शाह शम्स तबरेज के पास आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, मुझे माफ करना, मैं दौलत के नशे में मस्त था, आपके दिल को दुखाने के सबब अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा ले लिया। शाह शम्स तबरेज ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। उस बादशाह ने रोक के कहा, ऐ अल्लाह के वली, आप सिर्फ अल्लाह से ये कहे कि अगर आपके दिल दुखने के सबब मेरा बेटा मरा है तो वो जिंदा हो जाए, बस ये कहे। तो शाह शम्स तबरेज ने हाथों को उठा के कहा, ऐ अल्लाह, अगर इस बादशाह कहलाने वाले इंसान का बेटा इसलिए मर गया कि उसने तेरे बंदे का दिल दुखाया, तो इसका बेटा मेरी दुआ से जिंदा कर दे, बस ये कहना था। तो बादशाह का बेटा जिंदा होके खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, 2 दिन से मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो गया? यकीनन ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसकी खाल उतारो, इसे संसार करो, इसे जलावतन करो। ये बातें फैलने लगी। आपने जलाल में सबको देखा और कहा, अल्लाह के मोजज़े को जादू कहते हो? तुम्हें खाल चाहिए, ये लो। बस अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ा और खींच के अपनी खाल उतार के उसके कदमों में फेंक दी। सब देखते रहे और आप बगदाद से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। इस मोजज़े के बाद वो जो बेटा जिंदा हुआ था, उसने अपने बाबा से कहा कि मेरी जिंदगी शम्स तबरेज की दुआ का सदका है, आज के बाद मैं इनका गुलाम बन के रहूंगा। तो बस आपके साथ एक आपका बेटा नसीरुद्दीन और दूसरा वो शहजादा मोहम्मद चलते रहे। दरियाए जनाब से होते होते मुल्तान आ पहुंचे। मुल्तान का तारीखी पस मंजर कुछ यूं है कि ये शहर सदियों से आबाद है। हजारों साल पहले एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आके रहने लगी। संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं, तो यूं इस शहर का नाम माली अस्थान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता मालीतान और मालीतान से मुल्तान हो गया। शाह शम्स तबरेज जब अपने मुबारक कदम लेके इस शहर पहुंचे तो ना आपके जिस्म पे खाल थी, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ना पाँव में नाले, बस जिस्म से खून बहता रहा और मुसलसल खून बहने से कीड़े आपके जिस्म से लिपटे हुए होते थे। लोग आपसे नफरत किया करते थे, कोई आपसे बात तक नहीं करता था, कोई आपके करीब आके आपको खाना तक नहीं देता था, लेकिन आप अपने वजद में अपने खुदा के इश्क में मसरूफ रहा करते थे। बिलाखिर उस शहजादे के बेटे को बेइंतहा भूख लगी तो किसी ने थोड़ा सा गोश्त अल्लाह के नाम पे उसको दे दिया कि जाओ, तुम परदेसी हो, जाओ खाओ। उस गोश्त को पकाने के लिए पूरा मुल्तान फिरता रहा, किसी ने गोश्त पका के न दिया। बिलाखिर चंद लोगों ने उस शहजादे को मारना शुरू कर दिया, ऐसा मारा कि वो रोता रोता शम्स तबरेज के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, इनके पास किसी गरीब इंसान का कोई एहसास तक नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। बस शाह शम्स तबरेज ने अपनी झुकी हुई निगाहों को उठाया और क्या देखें कि उनके मुरीद का चेहरा खून से लाल और वो भूख से निढाल। शाह शम्स तबरेज ने देख के कहा, तुम्हें ये गोश्त खाना है? उसने रो के कहा, ऐ अल्लाह के वली, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बस शाह शम्स तबरेज ने आसमान की तरफ निगाह की और अपने मुरीद से गोश्त लिया और सूरज की तरफ देख के कहा, ऐ शम्स, तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, ये गोश्त मुझे पका के दो ताकि मेरा मुरीद खाए। बस सूरज की गर्मी बढ़ती रही और वो गोश्त पकना शुरू हो गया। मुल्तान में क़यामत बर्पा हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे कि ये क्या हो गया। सब भाग रहे हैं और शाह शम्स तबरेज उस गर्मी में गोश्त पका रहे हैं। बस
जब इस मंजर को वहाँ के लोगों ने देखा तो आके कदमों पे गिर गए और कहा कि ऐ अल्लाह के वली हमें माफ कर दो, हम इस गर्मी में मर जाएंगे, आज के बाद हम किसी गरीब को कमतर नहीं समझेंगे, ऐ अल्लाह के वली दुआ करो कि ये सूरज अपनी गर्मी कम करे। शाह शम्स तबरेज ने कहा, आज इस सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो सोचो रोज़े महशर की गर्मी किस तरह से बर्दाश्त करोगे। अल्लाह की मखलूक का एहसास करो, अल्लाह की मखलूक को कभी कम न समझो, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। बस आपने दुआ की और सूरज की गर्मी फिर से कम होती गई। लोग आपकी जियारत के लिए दूर दूर से आते रहे, आपके कदम चूमने लगे और आपके फर्जंद नसीरुद्दीन और उस शहजादे के बेटे ने बताया कि ये शम्स तबरेज है, मौलाना रूमी का उस्ताद, सब्जवार का सैयद, आले रसूल आले अली है। आपके जिस्म पे खाल ना होने की वजह से आपके जिस्म का खून इतना बह चुका था कि चंद ही अयाम में आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। लेकिन आपके बेटे नसीरुद्दीन ने जो इल्मी बातें आप लोगों को बताया करते थे, इल्मे नुजूम, इल्मे जफर, इल्मे नखत के वो राज जो जमाने को सिखाते थे, वो अक्सर करके तहरीर किया करते थे। और वो जो पत्थर जो हमेशा आपके सीने में हुआ करता था, उस पत्थर और हाथ की किताबों को आपने अपने बाबा की आखिरी निशानी समझकर अपने घर में छुपा दिया, जो पुश्त दर पुश्त होते होते आज हम तक आ पहुंचा और हम उन हाथ के लिखे हुए किताबों के तवस्सुत से मुख्तलिफ उलूम आप तक पहुंचाते।